Hello everyone. So this is the article which appeared in today's Indian Express newspaper, and this talks about the reorganization of states which happened in the post-independence India. So basically, we are going to talk about the history of it, why it happened, how it happened, and what came out of it, and where are we today regarding this. We will also talk about the advantages of reorganizing states on the basis of language, though it is not the reorganization solely on the basis of language, but yes, we do consider language as one of the factors while reorganizing the states. And we will also delve into the demerits of doing that, like what are the threats while we do that, what can be the possible threats in the coming future, which were also discussed at that time just after independence in the 1950s. So let's go ahead with this. So first of all, we have to understand that आप सभी ने एक चीज़ सुनी होगी in the news, like continuously which is coming up, that the imposition of Hindi language. So imposition of Hindi language, why? Like you must have thought that why it is happening, why center is trying to impose Hindi on the other states, which is, we can say, allegedly imposing Hindi. क्योंकि is it imposition or is it just to say promotion of language like Hindi language, which is also one of the official languages of India. Hindi along with English is considered official language of India, right? As per Article 343 of the Indian Constitution. So basically, under Article 351, it has been said that center will have to take efforts to promote Hindi as a language in the coming future. And that is what center is doing. Center is fulfilling the mandate of this article to promote Hindi as a language and to make it a bridge language all over the India. But since this is not the language that is spoken everywhere, so especially the South Indians, if we see, they are very apprehensive of using Hindi as a language, or to say of making Hindi as the only official language. As you must remember that when Official Language Act 1956 came up, so it was written in that English may be used, and so the word which was used was English may be used along with Hindi, might or may. So the southern states were not happy with this, that this word should be removed and it should be changed to shall, that English shall be used along with Hindi. So उनके resentment को ध्यान में रखते हुए we came up with Official Language Act 1963, and उसमें हमने दोनों को ही, इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बताया. And hence we are using both the languages. Since English is more comfortable for southern states, they use English in the majority of states. ठीक है, for the official work obviously. So why I am telling you all this? So this is because that you have to understand this language thing is going on, not just now we are talking about language, now we are talking about imposition of Hindi and all, but before that what all has happened is we have reorganized our states on the basis of language only. So we have fulfilled those demands in our past. So let's see what happened in that context. So basically, if we talk about pre-independence India, there were various demands. Regarding this linguistic reorganization, or to say, there were demands for organization of states on the basis of language. Okay. If we talk about 1874, Silhit was demanded for Bengali speaking people. Similarly, in 1876, Odia speaking people demanded a separate state for themselves. And what happened later on, that is during the era of Lord Curzon, he divided Bengal, as you know, in 1905. Though he divided Bengal for its own divide and rule policy, but it was said that we are dividing it on the basis of language to provide two states where the Bengali speaking people can have a separate state, that is Bengal. The East Wala was given here, and here comes Bihar and Odisha. They came up as a separate state, while Bengal was made a separate state. And later on,
1905 में बंगाल वॉज फर्दर लाइक 1911 में, sorry, 1911 में it was re-merger and all happened. This was nullified and all, though that is a different matter. But later on we see in after 1911, as we said that वो सब चेंज हो गया था, फिर से annulment हो गया था 1905 वाले उसका, which Lord Curzon divided. Later on in 1935, Government of India Act 1935, separation of Bihar and Odisha was demanded on the basis of language, and this was accepted here. So this separation, so the two states came out, that is Bihar and Odisha, on this basis as per this act, to fulfill the demand of certain sections. Then certain other demands started coming up, and there also came demand of Andhra state, which was called Andhra Desha movement. So they were also demanding a separate state on the basis of language. Here the Indian National Congress was supporting their demands. Okay, so it is the Indian National Congress which later on formed Congress as a party, and they were rejecting the demands of Andhra state only. So initially they were supporting, later they were rejecting. So we will see what happened for this shift. What were the reasons for this shift? So Congress continued supporting them till 1945-46. They also mentioned it as one of the points in the election manifesto of 1945-46. Okay, but then partition happened, and after that, obviously initial जो years रहेंगे उनमें we cannot talk about all this. We have to, first take up the administration in our hands and do the most immediate work first, and then when 2-3 years went up, okay, before that we see 1947 में we got independence. Okay, now during partition, when partition was happening, it was decided, okay, इससे भी पहले चलते हैं. Okay, so before independence, or to say pre-independence, there were category of states, like some were under British rule directly, some states were directly under British rule, while some states like princely states, they were not directly under the British rule नहीं थे, but they were indirectly definitely under the British rule. So there was a concept of British paramountcy, which meant assertion, East India Company's assertion of being supreme authority over princely states. So this was called British paramountcy. So, but after independence, or to say, when it was about to get independence, it was decided, when India was about to get independence, it was decided that the states which were directly under the British rule, they will like automatically become the part of India, right? But those states which are princely states, they had the option of joining either India or Pakistan, or they can remain independent. So this was the option, but there were certain conditions as well. So one of the conditions was, for example, if you want to join Pakistan, so there was a condition that you must have contiguity with Pakistan. What does it mean? That if there is Pakistan and there is India, so there should be some kind of this contiguity. कुछ contiguity होनी चाहिए आपके और उनके बीच में, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो. इट कैन नॉट बी लाइक कि आप यहाँ बैठे हो और आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, ये नहीं हो सकता. ठीक है. सो उसी को ध्यान में रखते हुए when we started our integration process, we had to integrate these states in India. Now this work was done by Sardar Patel, and it was done by him very well. And इसमें actually हमें पता नहीं है, but Mountbatten also played a very important role. Okay, so this you must remember. You can search about his role. He has done a quite good job. So Mountbatten started this integration process. So while he was successful in integrating most of the states through his diplomacy and all, but there were certain states like Telangana, Junagadh and Kashmir which decided to remain independent. Rather, Junagadh wanted to join Pakistan, but since it did not have any contiguity, and there's a whole story behind Junagadh, that how we stopped essential supplies for Junagadh and had to finally surrender. So we
then the plebiscite was done in Junagadh and we were able to integrate it as well. Telangana mein we were able to integrate it through police action. You just need to know that there is a story behind it definitely, but we cannot discuss everything here, right? Then with Pakistan occupied, or to say with the Jammu and Kashmir, we signed instrument of accession and we joined Kashmir also with India. Now हम कहाँ थे? अभी मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि we have done a lot of मेहनत to integrate these states to make a one unified India. इतनी सारी मेहनत हमने की है. And after that what happened is, जो डिमांड्स पहले से चली आ रही थी since long, the demands to have a separate state on the basis of language, वो फिर से इमर्ज होने लगती हैं. तो बिफोर दैट देखो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, लाइक द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड इन 1950, और वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जिस तरीके से बने गए थे वो क्लासिफिकेशन था पार्ट ABCD करके, ठीक है, ABCD, ठीक है. बट लेटर ऑन हम देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से हटता है. अब हम बात कर रहे थे रीऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो 1950 के बाद जब हम कुछ अपना मेजर वर्क करके इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स करके ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद इमर्ज होने लगती हैं डिमांड्स. फर्स्ट डिमांड वॉज इमर्जिंग फॉर आंध्रा, जो कि हमने देखा था चली आ रही थी, जिसे INC सपोर्ट भी कर रहा था. तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब INC क्योंकि पावर में है और सब कुछ हमारे हाथ में, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी डिमांड्स फुलफिल की जाएंगी. बट द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल क्योंकि वी वर अ नेसेंट स्टेट. नेसेंट, अभी हम नेसेंट मीन्स वॉट, अभी हमने बस एक तरीके से जन्म ही तो लिया है. इंडिया बिकेम अ कंट्री, अ फुल फ्लेजेड कंट्री इन 1947 ओनली. और अभी फिर आप हमें कह रहे हो कि हमने इतना सारा इंटीग्रेशन एंड ऑल किया और आप चाहते हो कि फिर से आपको एक अलग एक सेपरेशन किया जाए, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी जाए, तो वो नहीं चाहते थे. द लीडर्स डिड नॉट वांट टू सी एनीथिंग लाइक दैट. बट डिमांड्स तो आ रही हैं. सो डिमांड आती है, मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स चलने लगते हैं. सो फाइनली व्हाट हैपेंड, क्योंकि गवर्नमेंट वाज नॉट लिसनिंग टू देम इन 1953, वन ऑफ द लीडर्स, दैट इज Sri Potti Srimallu, yeah, I'm so sorry for the wrong pronunciation. Potti Srimallu, I think, hopefully I'm taking the name right. उन्होंने किया हंगर स्ट्राइक, और वो he was a 1 year old person and he died. Okay, अब उनकी डेथ हो जाती है. So Congress was not left with any other option, but they had to, like, उन्होंने बना दिया, आपका आंध्रा बना दिया, ठीक है. अब आपको पता है जब आप एक डिमांड एक्सेप्ट करते हो तो देयर कम्स अप फर्दर मोर डिमांड्स. सो आंध्रा स्टेट बनाने के बाद और भी स्टेट्स की डिमांड आने लगती है धीरे धीरे. जैसे कि आप देखो, ओके लेट मी शो यू द मैप. यहाँ पे देखो, अच्छा मैप दिया गया. अब ये है बॉम्बे. सो उस टाइम पे बॉम्बे ऐसे था 1950 के टाइम पे, ठीक है. सो दिस वॉज बॉम्बे. सो यहाँ पे जैसे कि गुजराती और मराठी दोनों टाइप के लोग रह रहे हैं. तो दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग कि गुजराती पीपल के लिए गुजरात हो, इनके लिए महाराष्ट्र हो. तो दे वर ऑल्सो डिमांडिंग सेपरेट स्टेट, एंड सिमिलरली मेनी अदर स्टेट्स वर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट. सो व्हाट हैपेंड? सो फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो there will be a committee, will be like a commission will be set up, that is State Reorganization Commission, and they will decide that whether it should be on, like, state should be reorganized on the basis of language or not. So अब ये तो हम बात कर रहे हैं 1956 से. इससे पहले भी हमने कमेटी बैठाई थी, like SK Dhar and JVP committee. So these both committees rejected that demand कि language के basis पे there should be a reorganization of states. While in 1956, State Reorganization Commission under Faisal Ali, this was set up and they accepted this demand. But they did not accept the demand of one state, one language. तो इन्होंने बोला कि one state, one language नहीं हो सकता. Though we can consider language as a factor while reorganizing the states, but it should not be this. ठीक है. And apart from language being considered, they will also consider administration factor, also economic factors. Then they will also consider like linguistic, तो हमने बोल ही दिया, cultural homogeneity. They will also consider linguistic and cultural homogeneity को भी consider किया जाएगा. And for like foremost thing, that is unity and security of India, इसे भी consider किया जाएगा while forming any state. ठीक है. So these were the things which they said कि इस basis पे state बन सकता है. अब इन्होंने एक और recommendation दी कि जो पार्ट ABCD का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, जो कि हमने देखा 1950 में कि जब हमने कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो पार्ट ABCD में डिवाइडेड थे, तो वो
दैट वॉज डन अवे विद। इन्होंने कहा ये अब नहीं होना चाहिए और स्टेट्स को आप डिवाइड कर दो, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया को डिवाइड कर दो। इसके अलावा इन्होंने एक और डिमांड, एक और जो एक्सेप्ट की थी डिमांड, वो थी विदर्भा और तेलंगाना के लिए सेपरेट स्टेट। बट ये डिमांड सेंटर ने एक्सेप्ट नहीं की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और आज भी विदर्भा अपने लिए एक सेपरेट स्टेट डिमांड करता है, जबकि तेलंगाना की डिमांड फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। सो फाइनली ये रीऑर्गेनाइजेशन होता है एंड लेटर ऑन विद टाइम वी एक्सेप्टेड मैनी मोर डिमांड्स। लाइक 1960 में बॉम्बे को भी सेपरेट कर दिया जाता है एंड बिटवीन महाराष्ट्र बना दिया जाता है और गुजरात सेपरेटली फॉर गुजराती, ठीक है। इसी तरीके से मैनी मोर डिमांड्स वर एक्सेप्टेड एंड फाइनली वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये सब हमने बोला कि ये सब लिंग्विस्टिक बेसिस पे सारे नहीं बन रहे हैं, ओके। देयर आर सम विच वर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वाइल सम अदर्स विच वर फाउंड ऑन वेरियस अदर रीजन्स। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ, दैट वॉज बिकॉज ऑफ राइजिंग इंसर्जेंसी एंड वेरियस डिमांड, लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दैट रीजन, जिसकी वजह से वहाँ रिजेंटमेंट एंड ऑल हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस, मेनी अदर फैक्टर्स होते हैं जहाँ, तो उसी वजह से नॉर्थ ईस्ट में भी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया एंड जो कभी सिर्फ असम हुआ करता था वो डिवाइड होकर आज 8 स्टेट्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब आप देखोगे किस तरीके से जो मैप है विच वॉज एग्जिस्टिंग इन 1950, ये आफ्टर 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद और उसके तहत जो हमने विद टाइम एंड अगेन जो रीऑर्गेनाइजेशन किया, उसके बाद इस मैप स्टार्टेड लुकिंग लाइक दिस। तो ये देखो, यहाँ पे हमने पंजाब भी एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या था, पंजाब एक एज अ होल एग्जिस्ट कर रहा था, पेप्सू स्टेट, एंड वी डिड व्हाट, हमने इसको ट्राइफिकेट किया इनटू पंजाब। हिमाचल प्रदेश उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी बना था, इट लेटर ऑन इन 1972 आई थिंक बिकेम अ स्टेट, एंड वन मोर दैट इज़ हरियाणा। आई डोंट नो वेयर इट इज़, कोई बात नहीं। तो हरियाणा, इन 3 स्टेट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से जैसा हमने बोला यहाँ पे डिविजन्स होने लगे, यहाँ पे असम था मेजॉरिटी, वो असम से निकल के काफ़ी अदर, अरुणाचल, यहाँ से मेघालय एंड ऑल बन गए। सो वी आर लुकिंग एट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहाँ ये त्रावणकोर कोचिन को मर्ज कर दिया गया एंड इट बिकेम केरला। त्रावणकोर कोचिन, कुर्ग, मैसूर, ये सब मर्ज करके बना, त्रावणकोर कोचिन, मालाबार, कासरगोड, ये सब मिलके बना था आपका केरला। एंड देन यहाँ पे देख ही लिया हमने। एंड लेटर ऑन आपको पता होगा उड़ीसा के, इसके भी फर्दर बाद का अगर हम देखें तो लाइक 2000s के बाद, तो यहाँ पे बिहार से निकल के यहाँ बनता है झारखंड, यहाँ बनता है छत्तीसगढ़ और यहाँ पे बनता है आपका उत्तराखंड। तो ये सारे स्टेट्स भी लेटर ऑन रीऑर्गेनाइज करके बनाए गए ऑन वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये तो हम बात कर रहे थे किस बेसिस पे, कि ये तो हम देख रहे थे इन जनरल रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। बट लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे जो रीऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो, व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड, व्हाई लाइक कांग्रेस एट दैट टाइम वाज नॉट रेडी। तो हमने बताया कि हम नेसेंट कंट्री थे, वी डिड नॉट वांट ऑल दैट रकस अगेन, रीऑर्गेनाइजेशन से डिसइंटीग्रेशन एंड ऑल, वो तो है ही। बट और क्या फैक्टर्स हैं, लाइक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने में दिक्कत क्या है हमें। सो व्हाट आर द बेसिकली वी कैन से डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो इसका एक रीज़न आ जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट के बजाय जो है पैरोकियल इंटरेस्ट राइज करने लगता है, रीजनलिज्म राइज करने लगता है, ठीक है। विच इज़ डेफिनेटली रीजनलिज्म इज़ अ थ्रेट टू आवर नेशनैलिटी, थ्रेट टू आवर यूनिटी, राइट। क्योंकि रीजनलिज्म आएगा तो क्या होगा, दे में अकर मैनी डिमांड्स ऑफ सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, लाइक सेसेशनिज्म की डिमांड्स आ सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रेटर नागालैंड की डिमांड है, दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इंडिया and make a separate country. There are also demands of like खालिस्तान, ठीक है। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं, तो रीजनलिज्म से ही राइज होती है और हम रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो, ठीक है। तो दैट कैन बी कंसीडर्ड अ डिसएडवांटेज। देन ऑल्सो लैंग्वेज में एक्ट एज लाइक एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको चाहिए स्टेट, अब आपकी आवाज़ कौन उठाएगा, डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल, तो वो उसको एक मुद्दा बना के अपने वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइक थिंग कि वोट बैंक पॉलिटिक्स और ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलता है। देन इट इज़ डेफिनेटली अ थ्रेट टू आवर नेशनल फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। द नेक्स्ट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस थिंग इज सब रीजनलिज्म। सब रीजनलिज्म से क्या मतलब है, सब रीजनलिज्म से लाइक पीपल विल नॉट लाइक
लाइक दे विल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद लैंग्वेज। अगर हम यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ठीक है, सो उनका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है जिस चीज़ से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब वहाँ पे दे विल नॉट अलाउ एनीबडी एल्स। व्हाट डज इट मीन? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी। सन ऑफ द सॉइल आप देखोगे गुजरात में देख लो, ठीक है, महाराष्ट्र में इवन देख लो, बेंगलोर में आपने देखा होगा किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न्स के अगेंस्ट काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। तो ये जो सन ऑफ द सॉइल है, दिस बिकम्स थ्रेट टू आवर नेशनल इंटीग्रिटी। एंड ऑल्सो जो कि हम इनिशियली बात कर रहे थे हिंदी लैंग्वेज का प्रमोट करने की, एज आई मेंशन इन आर्टिकल 351। बट अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाएंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली ये और ज़्यादा, अभी ऑलरेडी जो कुछ स्टेट्स हैं, मान लो ये कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना जो भी हो गए, ठीक है, कर्नाटका, ये अभी मना कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स मना कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि आप हिंदी हम पे इम्पोज कर रहे हो। बट जितने ज़्यादा स्टेट्स बनेंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ उठेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी राधा वी कैन से, ठीक है, तो वो इसके भी फिर अगेंस्ट आता है। तो ये कुछ रीजंस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इफ़ वी रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पर अगर हम देखें कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी तो होंगे। अब देखो, हमने रीऑर्गेनाइज किया था 1956 में, और आज तक क्या अब तक कुछ भी ऐसा हुआ? हम अभी भी वही यूनिफाइड इंडिया है, देयर इज़ नो इशू, राइट। तो इसका एडवांटेजेस भी बताए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? सो यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा की। तो ये जो रामचंद्र गुहा जी हैं, ये बताते हैं कि एक्चुअली जब हमने ये रीऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल किया तो वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये जो लैंग्वेज का डिवीजन है यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा एंड इंडिया में लेटर ऑन डिसइंटीग्रेट, इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। एंड वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग यूनाइटेड, ठीक है। और वहीं पे वो कहते हैं कि आप अदर स्टेट्स को अगर देखोगे, जैसे कि श्रीलंका हो गया, राइट, वहाँ पे क्या है? वन लैंग्वेज है, और वो वन लैंग्वेज एक्चुअली उनके डिवीजन का कारण बन रही है, ठीक है। दैट इज़ लीडिंग टू मोर कॉन्फ्लिक्ट्स रादर देन यूनिटी। तो सिंस वी हैव एक्सेप्टेड दोज डिमांड्स, तो जो डिमांड्स को एक्सेप्ट ना करने से जो सेसेशनिज्म हो सकता था, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज राइज हो सकती थी, उनको हमने रोक दिया, और उसी वजह से आज इंडिया यूनाइटेड करा है। तो इसका एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उसके अलावा क्या एडवांटेज है? तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ बून फॉर इंडियाज नेशनल इंटीग्रिटी, साबित हुआ है ये, ठीक है। देन इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि इट मे हेल्प द माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके कल्चरल प्रिजर्वेशन में ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ और रीजंस डाल सकते हो, जैसे कि इट में स्ट्रेंथन द जस्टिस डिलीवरी ऑफ द रीजन, एंड इट हैपन्स हाउ, क्योंकि अगर रीजनल लैंग्वेज में वो अपने ग्रीवेंसेस को कन्वे कर पा रहे हैं तो उनको जस्टिस भी इजीली मिल पाएगा। एजुकेशन अगर वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ले पा रहे हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इनका अच्छा होगा, एंड दैट में फर्दर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। देन इट ऑल्सो may lead to better development of the country in what sense? In the sense that it is said that language और development के बीच में भी एक relation है, economic development के बीच में, क्योंकि as per one study which occurred, it was established that states जहाँ पे high cultural affinity है, जहाँ पे उनके culture के basis पे चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, वो culture से attached ज़्यादा हैं, वहाँ पे they are performing even much better than the other states. For example, Tamil Nadu, Maharashtra and other. इसके अलावा इट में ऑल्सो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन द सेंस दैट पीपल में रेज देयर वॉइस, रेज देयर डिमांड्स, एंड ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन होगा, एंड डेफिनेटली दैट स्ट्रेंथन दिस कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो दिस इज इट। आई नो लॉन्ग हो गया आर्टिकल, बट आई थिंक आई हैव डेल्ट विद इट लाइक एग्जॉस्टिवली। पूरा का पूरा आर्टिकल हमने कवर कर लिया है होलिस्टिकली। सो दिस नाउ आप इसको एक बार अच्छे से सुन लोगे ना, आपको पूरा का पूरा ये कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा जो भी इस टाइम में हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में, इसमें आई थिंक बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस आर्टिकल। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू want me to make more such articles to cover the topics which are coming in the news exhaustively and holistically, then please like and subscribe. तो मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता दैट, I am just saying it so that you do not forget कि ऐसा भी कर सकते हो. It is just the only reason, nothing else. Okay, so thank you so much.